students. Today we shall read chapter number 1 from the book First Flight. The title of the chapter is A Letter to God. It's a story written by the Mexican author G.L. Fuentes. This story is about a farmer named Lencho. He was a very innocent person and he had deep, blind faith in God. He had such a faith in God that he overlooked all other things, and he wrote a letter to God asking him to send him some money to grow his crops once again. So let's begin with the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो घर जो कि उस घाटी में अकेला था, वो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर स्थित था. Crest means top of a hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इतनी ऊंचाई से कोई भी उस नदी को, उस पके हुए मकई के खेत को जो कि फूलों से ढका हुआ था और जो फूल हमेशा एक अच्छी फसल की निशानी थी, उन सबको इजीली देख सकते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को सिर्फ एक अच्छी भारी बारिश या फिर हल्की सी बारिश की जरूरत थी. Downpour means heavy rain and shower means mild rain. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो, जो कि अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था, उसने सिर्फ वो आकाश में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही देख रहा था. Now we are really going to get some water, woman. लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि जल्दी ही बारिश होगी. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. वो औरत जो कि खाना बना रही थी, उसने कहा कि हाँ, अगर परमात्मा ने चाहा तो. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उनकी मदर ने उन्हें आवाज नहीं लगाई, उन्हें बुलाया नहीं कि सभी खाने के लिए आ जाओ. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. खाने के दौरान ही, जैसे कि लेंचो का अनुमान था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast direction से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे थे. The air was fresh and sweet. हवा बहुत ही ताजी और सुहावनी लग रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो बाहर बारिश में गया, बारिश में भीगने के लिए, उस खुशी को फील करने के लिए जब बूंदें उसके शरीर पर गिरती. And when he returned, he exclaimed, और जैसे ही वो वापस आया, उसने कहा, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. उसने कहा, ये बारिश की बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं, ये नए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10-cent पीसेस हैं और जो छोटी हैं वो 5-cent पीसेस हैं. सेंट जो है वो करेंसी है मेक्सिको की. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. लेंचो के मन में, उसके चेहरे पे जो हाव भाव थे वो बहुत संतुष्ट लग रहा था. वो अपने खेतों को जो है देख रहा था कि कैसे उसके खेत जो थे वो कैसे ढक चुके थे बारिश से. But suddenly a strong wind began to blow.
लेकिन अचानक एकदम से बहुत तेज हवा जो थी वो बहने लगी एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ ओले जो थे वो भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. वो नए चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. उनके बच्चे बारिश में बाहर भीगते हुए वो उन फ्रोजन पर्ल्स को, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए भाग गए। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो ने दुखी होते कहा कि अब सिचुएशन जो थी वो वर्स हो रही है, वो बुरी हो रही है। I hope it passes quickly. मुझे आशा है कि ये जल्दी चला जाए। It didn't pass quickly. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तूफान जल्दी नहीं गया। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक ओले जो थे वो घर पे, गार्डन में, हिल साइड में, उसके खेत में और पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। The field was white, as if covered with salt. पूरा खेत सफेद नजर आ रहा था, जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. वृक्षों पर कोई एक सिंगल पत्ता नहीं बचा था। The corn was totally destroyed. फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. उसके कॉर्न फील्ड में जो फ्लावर्स खिले हुए थे वो अब नहीं दिखाई दे रहे थे। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा जो थी दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान चला गया तो वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. उसने अपने बच्चों से कहा कि अगर इंसेक्ट्स का एक झुंड फसल को तबाह करने आ जाता तो शायद वो इससे कुछ ज्यादा छोड़ देता। The hail has left nothing. लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास बिल्कुल भी फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one. वो रात बहुत ही दुख में बीती। All our work for nothing. लेंचो मन ही मन सोच रहा था कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। There's no one who can help us. हमारी मदद करने के लिए इस संसार में कोई भी नहीं है। We'll all go hungry this year. इस साल हमें जो है वो भूखे रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सब के दिल में जो कि उस घर में वहां पे उस जो कि घाटी में अकेला घर था वहां पे रहते थे, उनके मन में एक सिंगल होप थी। वो होप थी कि परमात्मा उनकी मदद करे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. तो लेंचो ने कहा कि चाहे ये पूरी तरह से उसकी फसल तबाह हो गई है, ये उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसे ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lento thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो के मन में सिर्फ एक ही होप थी, वो थी परमात्मा उसकी मदद करे। उसके बारे में उसने सुना था कि उसकी आंखें जो हैं वो सब कुछ देख लेती हैं, बाहर का भी और किसी के मन में क्या है वो भी झांक लेती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो एनिमल्स की तरह खेतों में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार जैसे ही सुबह हुई तो लेंचो जो है उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और उसने कहा कि वो खुद शहर जाएगा और उसे डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये जो थी वो एक लेटर थी गॉड के लिए।
God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा कि परमात्मा, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो लिखते लिखते वो कहता है कि मुझे 100 पैसोस जो है चाहिए मेरे खेत को, मेरी फसल को दोबारा उगाने के लिए और जिंदा रहने के लिए जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने. लिखते लिखते वो छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा जो है वो सब कुछ जानता है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लेटर के ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, उसमें लेटर डाल दी और एक कंफ्यूज्ड स्टेट में वो शहर की तरफ चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. तो डाकघर जाकर जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने एक स्टैम्प खरीदी और लेटर के ऊपर लगा दी और फिर उसे डाक में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. डाकघर में काम करने वाले व्यक्तियों में से एक ने, जो कि पोस्टमैन था और साथ के साथ पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हेल्प करता था, वो पोस्ट मास्टर के पास गया और बहुत जोर जोर से वो हंस रहा था और उसने उसे वो लेटर दिखाई जो कि गॉड के लिए ही थी. Never in his career as a postman had he known that address. अपने पूरे, जब से वो काम कर रहा था, पूरे कार्यकाल में उसे ऐसे एड्रेस का नहीं पता था जो कि गॉड का हो. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा सा फ्रेंडली बिहेवियर वाला पर्सन था, वो भी हंसने लगा, लेकिन साथ ही साथ वो एकदम से सीरियस हो गया और उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए उसने कहा, क्या विश्वास है! काश मुझे भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान में जैसा कि उस आदमी को, इस लेटर लिखने वाले आदमी को है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, किस तरह से वो आदमी भगवान के साथ बात करना चाहता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. सो वो उस लेटर लिखने वाले इंसान के विश्वास को जो है वो शेक नहीं करना चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था. तो इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया. वो क्या था? आंसर द लेटर, कि क्यों ना इस पत्र का जवाब दिया जाए. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जैसे ही उसने वो पत्र खोला, उसको पढ़ा, तो ये क्लियर था कि उसका जवाब देने के लिए उसे सिर्फ अच्छा भाव या इंक या पेपर ही नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ और भी चाहिए था. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन पोस्ट मास्टर का इरादा जो था वो पक्का था. उसने अपने पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे वर्कर्स से कुछ पैसा मांगा. उसने अपनी सैलरी में से भी कुछ शेयर जो था वो लेंचो को दिया और साथ में अपने कुछ फ्रेंड्स को भी कहा कि इस नोबल कॉज के लिए वो भी कुछ अपने मनी जो है वो दें. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो पोस्ट मास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था, ये बहुत नामुमकिन था कि वो इतना पैसा जो है वो इकट्ठा कर सके. अकेला वो 100 पैसे इकट्ठा कर सके, इसलिए उसने उस फार्मर को जो है हाफ से कुछ ज़्यादा जो है उसके लिए इकट्ठे कर लिए. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने वो पैसा जो था वो एनवलप में डाला, उसके ऊपर
लेंचो लिखा कि ये लेटर जो है वो लेंचो के लिए है, और उस लेटर के साथ उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा एज सिग्नेचर, वो वर्ड था गॉड, कि ये लेटर जो है वो गॉड की तरफ से है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो पहले से थोड़ा समय पहले ही वहां पे आ गया ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था। It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन ने खुद ही वो लेटर जो था वो लेंचो को दिया, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जबकि पोस्टमास्टर जो था वो ये एक्सपीरियंस कर रहा था कि उसे सेटिस्फेक्शन थी कि उसने एक अच्छा काम किया था, वो अपने ऑफिस में से ही लेंचो को देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. जैसे ही लेंचो ने पैसे देखे वो जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था गॉड में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, परमात्मा कभी गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता था क्योंकि लेंचो ने उसे प्रार्थना की थी कि वो उसे 100 पेसोस दे, लेकिन जब उसने काउंट किए तो वो 70 पेसोस थे, तो इसलिए उसे गुस्सा आ गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया, वहां जाकर उसने पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. वहां पे पब्लिक राइटिंग टेबल पास ही गया, वो वहां पे रख के उसने लेटर लिखना शुरू किया, और उसके चेहरे के जो भाव थे, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही थी, उसने माथा उसका तना हुआ था, और उससे ये पता चल रहा था कि उससे अपने ख्याल जो है, जो आइडियाज को एक्सप्रेस करने में कितनी मुश्किल हो रही थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जैसे ही उसने लेटर लिख दिया, वो खिड़की के पास गया, वहां पर जाकर उसने स्टैम्प खरीदी, उसको अपनी जीभ से लिक किया और फिर अपनी मुट्ठी से उसे एनवलप के ऊपर फिक्स कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर डाक में जाके गिरा, पोस्टमास्टर तुरंत वहां गया उसे खोलने के लिए। It said, उस लेटर पे लिखा था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 pesos ही मिले हैं। Send me the rest. जो बाकी बचे हैं वो भी मुझे भेज दें, since I need it very much, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेकिन वो पैसे मुझे डाक के जरिए ना भेजे जाएं क्योंकि पोस्ट ऑफिस पीपल जो हैं they are a bunch of crooks. crooks means ठग, और ठगों का समूह उसने बोला पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, और नीचे एज साइन अपना नेम लिखा लेंचो। सो आपने देखा कि ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लेंचो जो था ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जिन्होंने उसकी मदद की थी एंड नॉट गॉड। सो लेंचो हैड अ डीप बट ब्लाइंड फेथ इन गॉड एंड ही शुड हैव सम फेथ इन ह्यूमैनिटी। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू इट।